On B for you, this man is multi-talented. And when I say multi-talented, what do I say? Star Stop में बहुत साल पहले, when we used to be at Filmistan, he used to come and visit us very regularly. कभी गाड़ी में आते थे, कभी vanity van इनकी बार होती थी. And now in a different way, we are catching up. Shreyas Talpade, thank you so much for joining me. Always a pleasure. But you are the reason, sir, that a lot of people are worried for Bollywood. Because बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, आप ही की आवाज ने वो सारा चालू किया साउथ सुनामी. अब बताओ सर, आप कचहरी में हैं. What do you have to say about this? पुष्पा की आवाज, अल्लू अर्जुन की आवाज आप थे, and it reached a larger audience और अभी तक चल रही है. So are you sad and happy at the same time? I'm very happy. To be very honest, I'm not at all sad. I'm very, very happy. Of course, the reasons are multiple. एक तो the film worked big time. My work got appreciated. There's so much of love that I got for that film. And to be very honest, it is quite unbelievable. You know, the way the whole thing happened, the amount of praise that I really got. For the longest time, I kept wondering, ki, what is it that I've done any different? You know, I Correct. went ahead and I just did my dubbing, you know, like any other, my film for that matter. How I dubbed for my film, it was a similar kind of intensity and energy that put in for this one. But it Correct. worked big time. And of course, no complaints. I'm very happy. And majorly, I'm happy for the fact that, you know, a film like Pushpa obviously has opened doors for a lot of other regional cinema. Correct. Today, every other regional cinema will have that confidence to probably dub their films in multiple languages, not only Hindi, multiple languages, and release it. You know, just the way that South cinema is coming here with full force, even we can go down south, we can dub our films in South Indian languages and release it over there. And who knows, probably you'll have another Pushpa down south, you know. Correct. A Marathi Actually, they Pushpa. said कि ब्रह्मास्त्र का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा जहां पे they are dubbing in number of languages and trying to release it there. But they are scared about it. They are scared about it. I spoke to distributors. वो कह रहे हैं कि जितना एक्सपेक्टेंसी है उतना पता नहीं. But you never know. There needs to be a start somewhere, right? कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी और शायद पहले इसमें अच्छा हमें मिल जाए, शायद ना मिले, but शुरुआत तो करनी पड़ेगी. And I think it's a great initiative what the team of Brahmastra is doing, and it'll be followed by all other regional languages. I'm very sure about it. But how did Pushpa happen to you also? I know that you've always had a great voice and you're a multi-talented guy. You know, everybody knows that. अब director भी है, producer भी, actor भी है. But you know, I've been dubbing for so long, you know, and still in India there is a segregation. Abroad में ना बड़े-बड़े Hollywood actors dubbing करते हैं, लेकिन यहाँ पे proper dubbing नहीं होती है. मैंने हाल ही में अलादीन की थी, तो उसमें 2-4 बड़े नामचीन लोग थे जिनको डबिंग के लिए बुलाया गया था, बट वो कर नहीं पाए थे. इवेंचुअली अरमान ने अलादीन की आवाज की थी. आई वॉज जफार एंड दे वर स्पीकिंग टू लॉट ऑफ एक्टर्स, बट बहुत सारे एक्टर्स के रिजर्वेशंस थी कि यार पता नहीं हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यू नो, पॉडकास्ट की दुनिया में भी आई डोंट नो राइट नाउ आई एम एक्टिंग, आई डोंट नो वेदर आई वांट टू डू दिस आल्सो. ये थोड़ा रिजर्वेशन भारत में बड़ा रहता है आर्टिस्ट का टू जंप मीडियम्स. व्हाई? यार ये मतलब चीज मेरी भी समझ में नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो. और मैंने हमेशा मेरे दिल को जो चीज ठीक लगी है मैंने वो की है, और इसीलिए मैं कभी भी अपने आप को ऐसा किसी एक चीज में बांधे नहीं रखना चाहता था. मुझे ऐसा लगता है काम काम होता है यार, यू नो. आप टीवी पे करो या ओटीटी पे करो, फिल्मों में करो, एंड स्पेशली नाउ पोस्ट द पैंडेमिक द एंटायर डायनेमिक्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज चेंज्ड एंड चेंज्ड बिग टाइम. यू नो, ऐसा कोई मतलब आज के जनरेशन को आप बोलो कि मैं टीवी पे आता हूँ, हाँ तो ठीक है, मैं ओटीटी करता हूँ, हाँ तो ठीक है. ऑल दैट मैटर्स टू देम इज कि आप परफॉर्म करो यार. आप कहीं भी आओ, आप यूट्यूब पे आओ, फॉर ऑल आई केयर, बट आप जहां आते हो वहां परफॉर्म करो, तो ही मैं आपका वो काम देखूंगा. एंड इट वाज दैट सिंपल. मतलब आई एम डूइंग वन मराठी डेली शो, ओके, and there was a time in my life also, I mean during the pandemic, when I did a little bit of whatever introspection I could, and I figured the whole thing is changing. We just need to go back to basics. ये सारे जो हम अपने फंडे दिमाग में पाले हुए हैं कि मैं तो फिल्म का एक्टर हूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं यार टीवी कर रहा हूँ तो मैं जो उसमें, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है. आप अच्छा अच्छा काम करो, लोग आके देखेंगे, सिंपल. And whatever happened with me just proves that particular point, you know. I mean, I did. No, but now you have created a lot of trouble for Allu also.
अभी पता नहीं शायद हर एक पिक्चर में श्रेयस कैन वी वर्क ऑन पार्टनरशिप ऐसा हो जाएगा बिकॉज अगली बार अल्लू अर्जुन की जब पिक्चर आएगी तो लोग बोलेंगे है ये कौन है. बट टेल मी, हैव यू स्पोकन टू योर ओन टीम एंड थिंक टैंक दैट maybe I'll continue doing this also? Yes, your performances are happening on the side also, lots actually. But are you interested in continuing to dub? I would love to dub, and I would love to dub for Allu ji and his films. The reason I accepted Pushpa was because the main reason was that I really like Allu Arjun as an actor. I find him, of course, he's very stylish, very charming, and I also find him very sincere. And then when I saw the film, I really loved the film. I said, क्या कन्विक्शन से इस इंसान ने काम किया है, एक कंधा ऐसे रख के पूरी फिल्म में एक्शन भी वैसे ही, गाने भी वैसे, ये सब जो कुछ किया. So I really enjoyed dubbing that particular film. But then, of course, there are quite a few offers for dubbing. I just don't want to overdo it. You know what I mean? हाँ, correct. कि अच्छा अब ये चल गया, अभी ये भी डब कर, वो भी डब कर, तो वैसा नहीं करना है. करना सब कुछ है मुझे. मतलब अगर टीवी पे भी आप कर रहे हो तो मैं वो कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि लगा रहा है, मतलब सुबह एक सेट पे जा रहा है, दोपहर को कहीं और जा रहा है, वैसे नहीं करना मुझे. So I would want to dub for his films. And of course, I would love to dub for Pushpa 2 also. I mean, if that is how it goes. But you never know. मतलब, I'm not बस really. रेम्यूनरेशन की बात चेंज हो जाएगी सर, सुपर हिट हो गया है. व्हेन यू आर वाचिंग इट आल्सो, कैन यू इमेजिन दैट इट्स मेड लाइक 200-300 this kind of money? Are you shocked? Yeah. I'm just very happy. In fact, I'm telling you, I went and saw it in a theater. You know, of course, when the whole thing started picking up and the whole rage started building, तो सबका ये था रील्स वील्स बने, एंड उन्होंने कहा कि क्या पिक्चर बनाई. तो मैंने मेरे बीवी से कहा, यार इतने लोग कह रहे, जरा थिएटर में जाके देखते तो है कि क्या हंगामा है. तो मैं चुपचाप फिल्म शुरू होने के बाद चुपचाप अंदर जाके बैठा मल्टीप्लेक्स में, और मैं देख रहा था. और वहां पे मतलब वो सीक्वेंसेस में जो हंगामे हो रहे थे, जो शोरगुल हो रहा था, वो समथिंग एल्स. मैं बाहर निकला एंड आई लिटरली स्पोक विद माय वाइफ एंड आई सेड, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अलग क्या किया है, ये इतना क्यों हो रहा है ये. कि मैंने तो डब किया, जैसे नॉर्मल डब करते वैसे डब किया यार. बट शी सेड, probably I don't know, there's certain things that probably connect, and this is the one that connected big time with them. So yeah, तो ऐसा है दोस्त. मतलब नाउ द क्वेश्चन कम्स यार, बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े स्टार्स, और पता है ये संकट की घड़ी आ गई है ऐसा समझ लो. और ये बहुत रियल संकट की घड़ी है, जहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स अब थोड़े टेंशन में आ गए. मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला था, अक्षय राठी इज अ वेरी बिग एग्जीबिटर ऑल्सो, ही सेड कि सर ये साउथ सुनामी है. और अब क्या है कि नाउ यू हैव, इट जस्ट सो हैपेंड कि RRR and KGF2 and Beast and Pushpa and all these big films came in. और बीच में आउट ऑफ सिलेबस, बीच में कश्मीर फाइल्स भी आ गई थी, टोटली आउट ऑफ सिलेबस. तो अब सवाल ये उठता है, क्या थोड़ा फेयर फैक्टर आपने नोटिस किया है इन द इंडस्ट्री, इन द हिंदी स्पीकिंग इंडस्ट्री की? वैसे तो ऑलवेज कार्बन कॉपी ले रहे थे ऑफ द साउथ फिल्म्स, अब नहीं चलेगी ऐसे. एज जर्सी हैज प्रूव्ड, समटाइम्स इट माइट नॉट वर्क. फिल्म वाज वेरी वेल डन, but they are not finding this new. So this is going to be troublesome now. Is it a worrisome time for you? It depends on how you look at it, Salil, to be very honest. I feel this is a great time, because only when there is some great competition is when you will come up with some greater content, right? Some extraordinary content. That is what is expected from us also now, like the Hindi film industry or the Marathi film industry, every other industry. And those guys have been doing this with conviction for a really long time. तो उनकी फिल्में हमारे सैटेलाइट चैनल्स पे डब होके आती रही. माय मॉम इज एन एविड वॉचर, वो सारी साउथ की फिल्में डब जितनी होती है सारी देखती है. उसे साउथ के सारे हीरोज पता है. शायद हिंदी के एक आध दो लोग पता नहीं हो, लेकिन साउथ के सारे लोग पता है. अब वो इतनी इंटरेस्ट के साथ देखती है वो सारी फिल्में. तो जब पुष्पा रिलीज हुई तो सबसे पहले मम्मी का ये था, पुष्पा देखनी है मुझे. तो बच्चे ने डब किया, उसका कोई लेना देना नहीं था. पुष्पा देखने, अल्लू अर्जुन की फिल्म है मुझे देखनी. तो आज वो फॉलोइंग उनकी धीरे धीरे इतनी बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, राइट? एंड टुडे देयर इज एन ऑडियंस फॉर दोज काइंड ऑफ फिल्म, फॉर दोज काइंड ऑफ मसाला एंटरटेनर्स. तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें यार. क्यों नहीं करें? हम इतने पैसे वैसे भी खर्च करते हैं, तो हम ऐसी फिल्में बनाएं और वैसे ही खर्च करें. आपने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अभी बात की. अभी हाल ही में देयर इज अ फिल्म दैट इज डूइंग वेरी वेल, आई फॉरगेट द नेम, जो अभी थिएटर्स में चल रही है. शिवाजी महाराज की एक पिक्चर अभी आई है जो थिएटर्स में अभी चल रही है. हाँ.
I forget हाँ, the name, but then एक तो again, पावनखिंड आई थी जो अच्छी चली, और अभी हाँ, एक जय शिवराय। correct, yes, that is the one. तो ये भी अच्छा बिजनेस कर रही है, और यहां पे भी फाइट चल रही है टू गेट द सेंट्रल स्क्रीन्स। मैंने पढ़ा एक आर्टिकल जहां फ्राइडे को जब रिलीज हुई थी पिक्चर, इट हैड गॉट द आउटर स्क्रीन्स ऑफ द स्मॉलर थिएटर्स। फिर मंडे को पहुंचते पहुंचते केजीएफ के होने के बावजूद इट गॉट द इनर थिएटर्स। यू हैव बीन अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मराठी सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप एज एन एक्टर भी, एज ए डायरेक्टर भी, और बहुत सारे लोग। एंड आई रिमेंबर कि जब भी मैं शरद केलकर से भी बात करता हूँ, कहते हैं कि यार रितेश एंड श्रेयस आर टू पीपल दैट हैव ऑलवेज ट्राई टू हेल्प दिस सिनेमा। बट आपको क्या लगता है, आर वी गेटिंग द जोन जहां पे ये वाली रीजनल सिनेमा जो एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर होनी चाहिए इतनी पॉपुलर, और है भी शायद, बट वो क्या स्केल मिलते जा रहा है? बिकॉज 3-4 साल पहले हवा बहुत थी और तेजी थी, मुझे लगता है थोड़ी सी थम गई है तब से। ये एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से थोड़ा-सा तो मतलब फ़र्क पड़ा है। बट उस वक़्त भी इवन द गवर्नमेंट सपोर्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मिस्टर राज ठाकरे आल्सो हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन सपोर्टिंग मराठी सिनेमा एंड गेटिंग देम थिएटर्स। सो आई थिंक व्हाट इज़ नीडेड इज़ गिव अस शोज़, गिव अस प्राइम टाइम शोज़। यस, करेक्ट। मराठी सिनेमा को भी आप अगर मराठी सिनेमा को मुंबई और महाराष्ट्र में शोज़ नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाएँगे? यू वेरी नो? ट्रू। बिकॉज़ उनका मार्केट ही महाराष्ट्र है। एंड वन ऑफ द मेजर मार्केट्स इज मुंबई। आप उनको यहाँ पे अगर स्क्रीन नहीं देंगे, प्राइम टाइम शोज नहीं देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। So my thing is कि we will have to work out some permutation combinations and make sure that Marathi cinema gets, screens at par with all the other regional films and Hindi films. As simple as that. तो अगर वो देंगे, और अगर नहीं लोगों को पसंद आती है फिल्म, तो फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग तक पता चल जाता है, कि नहीं यार, करेक्ट। नहीं चल रही है, तो आप उसको हटा दो, और आपकी जो चल रही है वो फिल्म वापस लगा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आप मौका ही नहीं दोगे, और वो तो बेचारा कैसे पता लड़ चलेगा? झगड़ के कैसे कैसे करके आएगा, तो वैसे कोई उससे कोई मतलब नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बिजनेस करना है और आपको ही पैसे कमाने हैं, एंड ऑफ कोर्स 2 साल सबका बड़ा डल रहा, सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मनी नाउ व्हेन द करेक्ट। टाइम इज गुड। बट हैविंग सेड दैट, आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। आप यस। महाराष्ट्र में हैं, आप मुंबई में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि मराठी सिनेमा को आपको प्राइम टाइम शोज देने ही पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, बिकॉज मुझे पता है कि अगर साउथ सिनेमा में अगर आप बड़े से बड़े स्टार बॉलीवुड के भी आप वहाँ पे रिलीज करने जाओ, यू डोंट गेट द प्राइम टाइम थिएटर। यू कांट गो टू कर्नाटका एंड से कि भाई मुझे अपनी पिक्चर दिखानी है। यू गेट व्हाट इज द सेकंड, पहले उनको प्रेफरेंस जाता है। और इसकी वजह से जिस तरह हम लोग देख रहे हैं साउथ के, पहले कन्नड़ तो था ही नहीं, अब कन्नड़ा सिनेमा ऑल्सो बिकम सो बिग। ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आज केजीएफ कन्नड़ सिनेमा इज on its way to becoming the highest earner, KGF2. So it's a lesson that we must learn to preserve our own theaters and our own kind of cinema. Absolutely, we have to. There are no two ways about it. I mean, the reason that we speak so highly about the South cinema is because whether it's Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Yes. they've always given preference to their films first. They've made Yes. stars. उनके जो है, उनको उन्होंने स्टारडम वैसा दिया है, और उसके बाद ठीक है, आपको भी करना है, आप भी आइए, लेकिन बॉस हमारा जो है उसको भी Correct. हम पहले प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चलो आप मराठी सिनेमा पर मराठी सिनेमा को भी प्रेफरेंस दो यार। आप मतलब ये मान के चलते कि मराठी सिनेमा चलेगा ही नहीं और उसका बाद में देखेंगे, ये बात गलत। तो ये तो मतलब यू नो No, no. ये बिल्कुल सही बात बोली, and I think it needs stars like you also there, and that's why when you did a film like कौन प्रवीण तांबे also, एक तो मुझे बहुत फेवरेट क्रिकेटर वो लगा था। एक राहुल द्रविड़ ने उनको बड़ा फेमस कर दिया था, लेकिन मैंने पहले कभी ये नहीं सोचा था, हालांकि यू आर अ क्रिकेटर, बस इकबाल आपने की थी, और मुझे याद है उस टाइम बॉलिंग थोड़ी अलग थी। और अभी हाल ही में देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट आपकी क्रिकेट वाली फिल्म लोगों को बड़ी याद आ रही थी। कौन प्रवीण तांबे तो बाद में है। व्हेन इकबाल हैड कम आउट, दे से कि भाई वहां पे लोगों ने जितनी बारीकी से देखा था, इतना कभी आपने हुआ नहीं बनाया था। मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, 2 साल मुझे लग गए ये करने के लिए। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म यार। सो डू यू समटाइम्स फील कि यू आर अ प्रॉब्लम ऑफ योर सेल्फ? आपने खुद की प्रोपेगेंडा ही नहीं की कभी यार? सलील, सच कहूँ तो मतलब अभी इतने साल हो गए, मुझे ज्यादा बकवास करने में इंटरेस्ट नहीं है यार। जो करेक्ट। किया है, जैसा किया है, और आप एक बार झूठ बोलते हो तो फिर उसको छुपाने के लिए फिर और 4 अलग बोलने पड़ते हैं, फिर उसको याद रखना पड़ता है। But when you look back as a debut, it was breathtaking as a debut. And when you look back now after many years, अभी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो गए आप। Are you very impressed with that young boy who did that role as Iqbal? Well, there are times when you feel
a little down, a little depressed, a little demotivated with whatever probably is happening around you, your career, your phase in your life, and things like that. And that is when I tend to go back and revisit Iqbal and tell Wow. myself that, this is the film that I did. This was my first film, and this has got me here. So obviously, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता. I just have to wait for the right time, and keep working. I have always believed with one simple philosophy or ideology, whatever you call it, and that is if you want to score a century, the basic that you need to do is stay on the pitch. Yes. Just be there. Just keep taking your ones and twos, and then you will get those couple of loose balls which you can hit for a 6 and a 4. तो अभी 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 आपने 36 रन मार दिए ओवर में बाय द वे, ये पहले पुष्पा के साथ, और अब कौन प्रवीण तांबे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसमें बहुत मसाला था फॉर एन एक्टर. मुझे याद है अ कपल ऑफ इयर्स बैक आई वाज डूइंग अ क्रिकेट शो, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसकी लाइफ पर एक स्टोरी बनाना बहुत एक्साइटिंग रहेगी. दैट टाइम महेंद्र सिंह धोनी की आ चुकी थी ऑलरेडी, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट कि युवराज, सौरव गांगुली, इन सब की लाइफ पर एक पिक्चर बनानी है. एंड आई रिमेंबर देन दे वर सेइंग कि अनसंग हीरोज पर बनानी चाहिए. किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि प्रवीण तांबे पर बनेगी, बट देन ऑफ कोर्स इट वाज मेड. बट दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट अनसंग हीरो, इनफ ऑफ द फैमिली पार्ट ऑफ इट. एज अ रोल इट मस्ट हैव रियली एक्साइटेड यू, एंड हाउ डिड दे कम टू यू? No, I mean it was very very exciting. As an actor, इससे ज़्यादा आप technically क्या मांगोगे perform करने के लिए, And why they came to me, I guess probably uh, क्या बोलते हैं उसको, सही समय, और मैं कुछ इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास कि क्यों मेरे पास. But I think there are a few similarities between me and Praveen. We both have come from middle class Maharashtrian backgrounds, and मतलब गली क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, मैं वो भी सारा खेल चुका हूँ. मैं मिडिल क्लास महाराष्ट्रियंस की जिंदगी क्या होती है वो जी चुका हूँ, वो सारा देख चुका हूँ. मेरा भी डेब्यू हुआ एट द एज ऑफ 30, though I played one 18-year-old. But even I was technically in the industry a late bloomer of sorts. So there were a few similarities, and probably that's why they must have felt and Maharashtrian, कि ये हम इसको select करते हैं. But I'm so glad that they had that faith in me, and they gave me this particular opportunity. क्योंकि जब कहानी सुनी मैंने, इनफैक्ट जब पहली बार प्रवीण को खेलते हुए देखा था आईपीएल में, तो हम लोग सब यार दोस्त देख रहे थे, और मैंने बोला ये कौन है. उन्होंने बोला प्रवीण तांबे नाम है इनका, और 41 में डेब्यू किया है. तो मैं बोला 41 में किसी की जान पहचान से आए हैं क्या? करेक्ट, हमने सब ये सोचा था. 41 में कौन आता है, और ऐसा क्या, मतलब देन गेम देखा तो मैंने, खुद कोई जान पहचान नहीं है, सॉलिड खेलता है, गेम देख, तो गेम देखा, इम्प्रेस हो गए. उस वक्त एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, आप सोचते हो कि यार ये तो पिक्चर वाली कहानी है. 41 में बंदे ने डेब्यू किया, इसकी कहानी क्या होगी. So when they actually called me for that particular film, I was very happy and very excited. I said, बाकी कुछ भी ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ये बंदे की कहानी क्या है. And then when I heard his story of what all he's gone through and how he has, just he's never said die. Correct. He's just, the whole perseverance that he has, the determination that he had, and the way he's used his ears कि एक से सुनो दूसरे से निकालो, जो unwanted है कुछ मत सुनो, और खेलता रहा बंदा. And today, I mean, you have a film on Praveen Tambe, right? I mean, it's going to be there for life. You have had a rebirth. This is Shreyas 3.0, let's call it this. But I'm so happy because you're such a true performer. और मुझे लगता है कि अब श्रेयस, अब पीछे हटने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा. I know you are super busy also now. Thank you for taking the time for doing this, yaar, because I've always been a big fan. Because I always feel that you have a lot of the talent. कभी कोई माउथ पीस या लाउड स्पीकर साथ में रख लेना जो आपके लिए बोल सके, और बिल्कुल बात सेट हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू. लवली टॉकिंग टू यू सलील, एज ऑलवेज. बड़ा मजा आता है तेरे से बात करके, अच्छा लगता है. सो थैंक्स वंस अगेन. थैंक्स फॉर बीइंग द सेम ऑल दीस इयर्स. टेक केयर. ऑलराइट buddy, take care. Big respect, brother, and always there. This is how you keep reinventing yourself. जब भी आपको लगता है कि it's over, it's out, and no more can happen, this is how you can reinvent yourself. Shreyas Talpade on B4U Star Stop. Go check it out on B4U Entertainment. This interview is going to be out there. Bye bye from Salil from here.